अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी का पार्ट 2 कवर करेंगे। पार्ट 1 में वी डिस्कस्ड इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। इंट्रोडक्शन का थोड़ा सा हमने कवर किया था एंड वी ऑल्सो हैड डिस्कस्ड दी डेफिनेशंस के डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ ने सोशियोलॉजी को किस तरीके से डिफ़ाइन किया है। Now, today in this video, we will be discussing origin and development of sociology, जो कि हमारा आज का part 2 होगा। Sociology of today is the product of man's old experiences and observations. Sociology is the science of society, जो कि originate हुई थी as a special discipline in 1836 by Auguste Comte. ऑगस्ट कॉम्टे एक फ्रेंच थे जिन्होंने इनिशियली सोशियोलॉजी को टर्म दी थी सोशल फिज़िक्स। सोशियोलॉजी जो है वो बाद में एक प्रॉपर डिसिप्लिन बनी। इनिशियली ऑगस्ट कॉम्टे ने 1836 में साइंस ऑफ सोसाइटी को सोशल फिज़िक्स का नाम दिया और ये सोशल फिज़िक्स आज हमारे डिसिप्लिन्स में सोशियोलॉजी कहलाई जाती है। ऑलराइट। Though it is a new discipline, its foundation was laid by Allama Ibn Khaldun, who was a Muslim historian of Tunis. He named this new science Ilmul Imran, study of people, and he said that no historian could write the history of a nation until he studied Ilmul Imran. Ilmul Imran का नाम दिया था अल्लामा इब्न खल्दून ने सोशियोलॉजी को। सोशियोलॉजी was defined by अल्लामा इब्न खल्दून as the study of people, जिसे अरबिक में हम इल्मुल इमरान कहते हैं। अल्लामा इब्न खल्दून कहते हैं कि कोई भी शख्स जो है वो हिस्ट्री राइट नहीं कर सकता है किसी भी नेशन की अनटिल एंड अनलेस उसने उस पॉपुलेशन की जो उस पॉपुलेशन के लोग हैं उनकी जो सोशल लाइफ है उस पर एक प्रॉपर तरीके से स्टडी ना की हो। तो until and unless you have not studied the social life of any population, no historian can write the history of a nation. Ibn Khaldun's famous work on sociological contributions is his Muqaddimah. The old Muslim thinkers were Al-Razi, Al-Kundi, Al-Farabi, Ibn Sina, Al-Mawardi, Imam Ghazali, Shah Waliullah Dehlvi, and others. The European old social thinkers were Aristotle, Socrates, Plato, Machiavelli, Thomas Hobbes, Kant, and others. जो हमारे पास्ट के मुस्लिम थिंकर्स हैं उनकी हमने अभी नेम्स जो है ना मेंशन किए हैं, और जो ग्रीक या यूरोपियन ओल्ड सोशल थिंकर्स हैं जैसे कि एरिस्टोटल, सोक्रेटिस, प्लेटो, मैकियावेली, थॉमस हॉब्स, कैंट, उन्होंने अपने टर्म्स में सोशियोलॉजी की इस्टेब्लिशमेंट में काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस की हैं। सम ऑफ द नोटेबल थिंकर्स ऑफ मॉडर्न टाइम्स आर हर्बर्ट स्पेंसर, पेरेटो, दुर्कहाइम, पार्सन्स, वेबर, इंकल्स, पार्क, Burgess, Timoshev, Mead, George Simmel, George Herbert Mead, Nimkoff, and Martindale. The efforts of these thinkers have developed sociology as a new science. What happens around us in our social life falls in the area of sociology. हमारी जितनी भी social activities हैं, social behavior है, हमारा जितनी भी social life है वो sociology के realm में fall करती है, और sociology हमारे जितने भी human interactions हैं, human structure, human functions, human social systems जितने भी हैं उन्हें sociology जो है ना define करती है। And sociology basically studies various aspects of man's life. Different sociologists have defined these different aspects of social life with respect to their study and observation. Social behavior जो है ना उसकी बहुत सारी साइड्स हैं। अब वो किस तरह के हम एक सोसाइटी में रहते हैं और हमें सोसाइटी में रहने के लिए बहुत सारे ग्रुप्स में बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारे लोगों के साथ एट अ टाइम पार्टिसिपेट हमें करना होता है। अब एक ग्रुप में कहीं आप किसी तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किसी और ग्रुप में आप किसी तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो मैन पार्टिसिपेट्स इन वन ग्रुप एट वन टाइम एंड इन अनदर ग्रुप at other time for the satisfaction of his needs. It means his behavior is influenced by various groups. In this way, this social behavior grows complex. All social behavior are social events of man. The study of such social events is the aim of sociology.
From these events, we deduce general laws under which these events happen in society. In this way, sociology is basically generalizing the science of society. It studies general events and not the particular ones. The knowledge of sociology is applied in the solution of social problems. It explains the socio-cultural conditions which direct towards the solution of the problems. This field is called applied sociology, जहाँ पे different solution हम निकालते हैं social problems के. तो sociology वहाँ पर applied sociology कहलाई जाती है, जहाँ पे different social problems के solutions जो है ना वो निकाले जाएं वया socio-cultural conditions को जो है ना examine करते हुए. तो humans के जितने भी social behavior होते हैं जो कि काफ़ी complex होते हैं, इनकी जितनी भी स्टडी होती है, इनकी जितनी भी एग्जामिनेशन होती है, वो सोशियोलॉजिकल वे में होती है. तो सोशियोलॉजी बेसिकली क्या है? एक ऐसी साइंस है, एक ऐसी स्टडी है जो कि साइंस ऑफ सोसाइटी को जनरलाइज करती है. अब देखें, जैसे डिफरेंट इंडिविजुअल्स एट अ टाइम वेरियस वेज में किसी भी ग्रुप के साथ, किसी भी इंडिविजुअल के साथ इंटरैक्ट करते हैं. तो सोशियोलॉजी किसी इंडिविजुअल या एक या दो लोगों की बात नहीं करती है. सोशियोलॉजी ओवरऑल जितने भी ह्यूमंस होते हैं, उनकी जिस भी किस्म के सोशल इवेंट्स होते हैं, सोशल बिहेवियर्स होते हैं, वो किस तरीके से एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, उस सब को जनरलाइज करती है. इसी वजह से सोशियोलॉजी इज़ अ जनरलाइज्ड स्टडी ऑफ द सोसाइटी, ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी. ऑलराइट. So when we say that sociology is generalizing science of society, what do we mean by that? We mean that it studies general events and not the particular ones. Now, what are the general events? वो तमाम जितने भी human social behaviors होते हैं, वो किस चीज़ से होते हैं? वो सोशल इवेंट्स से होते हैं. अब सोशल इवेंट्स बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं. ठीक है, आपकी किसी से फ्रेंडशिप है, किसी से कोई एनिमिटी है, या तो दोस्ती है या तो दुश्मनी है, या आप किसी कंपनी में किसी के लिए काम कर रहे हैं. सो आपका जो बॉस के साथ एक रिलेशन है, वर्क रिलेशन है, और बॉस का अपने एम्प्लॉयज़ के साथ जो एक वर्क रिलेशन है. इसी तरीके से आपकी फैमिली में, आपके घर में, आपकी फैमिली से आपके जितने भी विद योर पेरेंट्स, विद योर स्पाउस, विद योर children, आपके with your siblings, whatever the type of relation that you have, ये सारी चीज़ें जितने भी ह्यूमन कनेक्शंस हैं वो सब आपके सोशल इवेंट्स बन जाते हैं. ठीक है, सोशल इवेंट्स में क्या हो रहा होता है? कोई भी इस तरह का इवेंट जिसमें ह्यूमंस एक दूसरे से पर्टिकुलरली इंटरैक्ट करते हों, और जब वो इंटरैक्ट करते हैं तो डिफरेंट बिहेवियर्स जो होते हैं, ये सारे सोशल बिहेवियर्स. व्हाट आर द सोशल बिहेवियर्स? बेसिकली सोशल बिहेवियर्स आर द रिजल्ट्स ऑफ सोशल इवेंट्स ऑफ अ मैन. Alright. Now, when you study these social events in a generalized form, this is your sociology. Sociology किसी एक या दो या तीन इंसानों को सिर्फ स्टडी नहीं करती कि उनके जो है ना क्या हैं relations with their significant others. उनके जो relations होते हैं with their co-workers, with their family members, with their significant others, with the generalized others, ये सारे जितने भी interactions होते हैं, human interactions होते हैं, इन्हें sociology जो है वो एक generalized way में study करती है. It is not about studying only one or two persons. Overall, on a very collective level, सारी जितनी भी ह्यूमन सोसाइटी है, उनके सब की जिस भी किस्म की ह्यूमन इंटरेक्शंस होते हैं, सोशल इवेंट्स होते हैं, सोशल बिहेवियर्स होते हैं, पूरी ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमन के जितने भी सोशल लाइफ के एस्पेक्ट्स होते हैं, उनको स्टडी करना, उनको ऑब्जर्व करना. ठीक है, और फिर उसके ऊपर पूरी रिसर्च बेस्ड थ्योरीज प्रेजेंट करना. So theorizing all of the aspects of social life with respect to study and observation, and studying the social behavior, which is of course many-sided with respect to man and his members. In सब को study करना generalized form में is your sociology. So sociology is not only about the particular humans, it is about the humans on a collective level, that how they interact with each other and how they what type of relations they share with each other in different social gatherings, in different social settings, in different social events.
अब जब इस पूरी थ्योरी को आप अच्छी तरीके से स्टडी कर लेते हैं, सोशियोलॉजी जब सारे सोशल इवेंट्स को कैटेगराइज करती है, जनरलाइज करती है, स्टडी करती है बहुत डीपली सारे ह्यूमन इंटरेक्शंस को, तो इससे ऑफ कोर्स सोशल बहुत सारे प्रॉब्लम्स निकलते हैं, ठीक है। जैसे जेंडर इश्यूज़ हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस इश्यूज़ हो जाते हैं, किसी भी कैटास्ट्रफी की किसी भी हादसे की सिचुएशन में जो है ना वो ह्यूमंस का क्या रिएक्शन होता है। फॉर इंस्टेंस अभी जैसे रिसेंटली फ्लड्स आए थे इन पाकिस्तान, तो उसके इस तरह के केसेस में जो है ना सोशियोलॉजी स्टडी करती है कि ह्यूमंस का फिर क्या रिएक्शंस होते हैं, वो यूसेस से फिर किस तरीके से इंटरैक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें फिर आपके सोशल प्रॉब्लम्स को भी हाईलाइट करती है। तो जब आप सोशल प्रॉब्लम्स को इन अ वेरी थ्योरेटिकल वे, इन अ वेरी रिसर्च्ड मैनर जब आप सोशल प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करते हैं और उनके सॉल्यूशंस जो है ना आप फिगर आउट करते हैं, तो ये फिर अप्लाइड सोशियोलॉजी बन जाती है। ऑलराइट, so hopefully this was okay, this is all about the origin and development of sociology today, which we discussed in this video. If you like this video, please give it a thumbs up, leave your comments in the feedback section below, and do not forget to subscribe and press the bell icon. Thank you so much for watching.